تو ان کو بھی یہی طریقہ ان کا تھا پوشیدہ طور پر کہ ایسی گائے چن کر الگ کر لیتے جس سے کام شام نہ لیتے اور وہ بڑی خوبصورت ہوتی اور پھر اس کو تعظیم اور پرستش کے لیے استعمال کرتے. تو اللہ نے راز کھول دیا. فذبحوها پھر ذبح کیا اس کو. وما قادوا يفعلون حالانکہ ایسا کرنے والے تھے نہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے کرا کے چھوڑا, وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں. اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور واقعہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھے جو بڑے نیک تھے. ان کا ایک بچہ تھا اور ان کے پاس ایک بچیا تھی, گائے کی بچی تھی. تو وہ بیمار ہوئے, ان کو لگا میں بچوں گا نہیں, تو انہوں نے اپنی بچیا جنگل کی طرف پھینک دی اور کہا اللہ میرا بیٹا بڑا ہو تو اسے اس گائے سے نفع دے. اب ہوا یہ کہ وہ وفات پا گئے. وہ بچہ جب بڑا ہوا اس نے کہا ماں اپنے کام کرا کہاں سے شروع کروں, میرے پاس پیسہ کوئی نہیں. ماں نے کہا بیٹے تمہارے باپ نے گائے چھوڑی تھی جو پوری ہیڈ ٹو ٹو براؤن تھی, تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی بچی, آپ جاؤ وہ لے آؤ. تو جنگل سے بچیا تو ڈھونڈ کر لے آیا, مگر وہ تب جنگلی گائے ہو گئی تھی سانڈ کی طرح, نہ کام کی نہ کاج کی. وہ تو شروع سے ٹریننگ دیتے ہیں, قابو کرتے. تو لے تو آیا بچہ, تو کہنے لڑکا, تو کہنے لگا کہ میں کروں کیا, یہ تو کسی کام کی نہیں. تو کہنے لگی کہ بیٹا صبر کرو, اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں گے, کیونکہ تمہارے ابا بڑے نیک تھے, انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس سے نفع دے. پھر ان کو ضرورت پڑ گئی, پھر انہوں نے منہ مانگی قیمت پر لی. لہٰذا خود ان کی اپنی جو روایت ہے ابن عباس اسے نقل بھی کرتے ہیں کہ گائے کی کھال بھر کر سونا دیا تھا. اب پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں, لیکن بہرحال مہنگوں داموں خریدی جس سے اس بچے کی زندگی آگے چل پڑی اور گائے کو انہوں نے ذبح کر دیا. اس سے یہ اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں تو نیک ہو, آپ کی نیکیاں انشاءاللہ بچوں کے کام آئیں. یہ آپ سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں کہ دیوار سیدھی کی تھی, واللہ مخرج, اللہ نکالنے والا تھا, ما کنتم تکتمون, جو تم چھپا رہے تھے. کیا چھپا رہے تھے جی؟ یہ قتل کس نے کیا؟ فقلنا اضربوہ ببعضھا, ہم نے کہا مارو مردے کو گائے کا ایک حصہ. کذالک یحیی اللہ الموتى, ایسے ہی اللہ مردے زندہ کرے گا. یعنی گائے کا ٹکڑا جب مردے کو لگایا گیا مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے خود بتا دیا مجھے کس نے قتل کیا اور پھر مر گیا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے نشانی رکھ دی ان کے سامنے تاکہ انہیں یقین آ جائے, مگر پھر بھی نہیں آیا. تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح میں مردے زندہ کروں گا جیسے اسے زندہ کیا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل اختیار کرو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, اور تمہارے دل ایسی نشانی دیکھنے کے بعد بھی سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ, ایسے جیسے پتھر ہو. او اشد قسوہ, نہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے تمہارے دل کہ کسی بات سے پگھلتے ہی نہیں ہیں. وَإِنَّا بِلَا شَكٍّ مِنَ الْحِجَارَةِ, پتھروں میں ہی وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں ایسے پتھر ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا, اور اس میں ہے لَمَا يَشَقَّقُ, جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان میں سے بھی پانی بہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ایسے پتھر ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یعنی پتھر بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں. پتھروں کے اندر بھی پانی موجود ہوتا ہے, پتھروں سے بھی پانی کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں. انسان کے دل سے سخت اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. اگر دل سخت ہو جائے تو دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ یتیم کے پاس بیٹھنا, مریض کے پاس بیٹھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک صحابی نے کہا میرا دل سخت ہو گیا, میں کیا کروں؟ آپ نے کہا مریضوں کی عیادت کیا کرو, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. تو خالی ہاتھ پھیرنے سے تو مراد نہیں نا, کبھی یتیموں کے پاس جاؤ, ان کا حال دیکھو, اور کبھی مریضوں کے پاس جاؤ, ان کی عیادت کرو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہے, جو تم اعمال کرتے ہو اللہ جانتا ہے. أَفَتَطْمَعُونَ, اب خطاب ہوا مسلمانوں سے, صحابہ سے خصوصاً, کیا تم امید رکھتے ہو أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے, یہود تم پر ایمان لائیں گے, مومنو تم یہ سمجھتے ہو. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, حالانکہ ان کا ایک ایسا گروہ ہے, يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, جو اللہ کا کلام سنتے ہیں, ثم يحرفونه, پھر بدل ڈالتے ہیں اسے, من بعد, اس کے بعد, ما قالوا, کہ وہ سمجھ لیتے ہیں اسے. اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر بدلتے ہیں. وہم یعلمون, اور وہ یہ سب جانتے ہیں. تو ریت کو بدلتے تھے نا سننے اور سمجھنے کے بعد. ہمارے ہاں کوئی ایسا گروہ ہے, کوئی ایسا کوئی گروہ ہے کسی کا نام بتا سکتے ہیں؟
پیر پرستوں کا گروہ ہے جنہوں نے قرآن کو باقاعدہ بدلا، ان کا بتائیں۔ اسماعیلی ہیں جی، غلام احمد قادیانی، اس نے تو پراپرلی قرآن کو پتا نا، ختم نبوت کا انکار کیا اور جہاد کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد غلام احمد پرویز، جس نے انکار حدیث کا فتنہ اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان کے زمانے تک محدود قرار دیا، وہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے، گوہر شاہی فتنہ ہے، اسماعیلی فرقہ ہے۔ اور وہ ہر بندہ جو توحید کا انکاری ہے قرآن پڑھنے کے بعد بھی، اور جو بہت کٹر شیعہ عقائد کے حامل ہیں، تو ان میں بھی یہ خرابی ہے۔ بہت کٹر جو سنی عقیدوں کے حامل ہیں ان میں بھی یہی خرابی ہے۔ یہ نہیں کہ میں کو ایگزامپل کر رہی ہوں۔ اسماعیلی ہے تو جی جی پوری آپ کو یہی ملیں گی، صحیح کہہ رہی ہیں۔ کلمہ بعد ان کا بہت بڑا نہر ہے، اس میں اس کا جو ان کا کون سا اول تھا اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں جی، بالکل کرتے ہیں، اسے رسول بھی مانتے ہیں اور اس کو رسول سے بھی اوپر مانتے ہیں، اللہ کا گویا کہ پڑھتے ہی مانتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سارے گروہ ہمارے ماں بہن بھی ہیں، اور انہوں نے جب قرآن کو بدلا، جیسے غلام احمد قادیانی کو ہی سامنے رکھیں، تو غلام احمد قادیانی جو ہے قرآن کا عالم تھا، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھا، عالم تھا، بڑا مقرر تھا اور بڑی اچھا تحریر بھی اس کی بڑی عمدہ تھی، تبھی تو اس کو چنا گیا تھا فتنے کے لیے۔ فتنہ وہی بندہ ڈالے گا جس کو تحریر و تقریر میں کمال حاصل ہوگا، جس کو نہ بولنا آتا ہے نہ کوئی ڈھنگ کا لکھ سکتا ہے، وہ کیا فتنہ ڈالے گا؟ تو غلام احمد پرویز یہ دونوں پنجاب میں ہی پیدا ہوئے، فتنہ پرور، اتفاق ہے دونوں کے نام غلام احمد۔ تو غلام احمد پرویز نے فتنہ انکار حدیث اٹھایا، اور وہ بھی بڑا مقرر تھا اور بڑا عالم تھا۔ جو عالم ہوگا وہی تو پھر باتوں کو گھمائے گا، سادہ بندے نے کیا بات گھمانی؟ پڑا تھا کہ یہ غلام احمد جو ہے نا، یہ دیوبند کا پڑا ہوا تھا، اتنا بڑا عالم۔ جی جی بالکل عالم ہے، کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ دیکھیں پڑا ہوا تھا، بہت نامور تھا، بہت فیمس تھا، پھر اس کو خریدا گیا۔ کئیوں کی نے کوشش کی ہوگی برٹش گورنمنٹ نے، اصل میں جہاد کا بڑا مسئلہ تھا، مسلمان قابو نہیں آ رہے، تو وہ چاہتے تھے کہ جہاد کا تصور جو ہے نا وہ نکلے ذہنوں سے۔ تو یہ کام ہو سکتا تھا معاذاللہ ممبر سے ہی نا، ممبر سے کوئی آواز اٹھے جو کہے اب جہاد نہیں ہے، تو انہوں نے کئی عالموں کو پیشکش کی ہوگی، صرف ایک اس اکیلے کو ہی نہیں، وہ بدنصیبی اسی کے لیے، اسی نے لبیک کہا۔ تو پھر اس کو مرتے وقت تک اس کی اولادوں تک کو جو ہے وہ وکٹوریا کی تاج برطانیہ سے ملکہ وکٹوریا کے نام سے ان کو گرانٹ ملتی رہی، تو وہ پھر بک گیا، بالکل پڑا ہوا تھا۔ جی جی ابھی بھی ملتی ہے، لیکن اس کی فیملی کو تو بہت عرصہ نا، یعنی اس کی پینشن آتی رہی، باقاعدہ یہ تنخواہ یافتہ تھا سرکار برطانیہ، تو وہ پھر بک گیا تھا۔ وہ آپ نے مثال پڑھی ہے، دوبارہ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں نا، وہ بندہ جسے ہم نے دین کا علم دیا، وہ چاہتا تو ہم اس کا درجہ بلند کر دیتے، مگر وہ تو کتے کی طرح زمین کی طرف جھکتا چلا گیا، چاہے اسے دھتکارو نہ دھتکارو، اس نے ہانپنا ہی ہانپنا۔ یہ وہ مثال ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، ثم آمین۔ تو سمجھنے کے بعد بدل دیتے ہیں یہ لوگ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم وہ باتیں بتاتے ہو ان مسلمانوں کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر واضح کی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں ان باتوں کو لے کر، عِندَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے پاس۔ سمجھ آئی؟ کیا تم توریت کے احکامات ان مسلمانوں کو بتاتے ہو؟ تمہارے بتانے کی وجہ سے قیامت کے دن مسلمان توریت کے ان احکامات کو بنیاد بنا کر تمہارے خلاف اللہ کی کمپلین کریں گے۔ یعنی عقیدہ کیا تھا ان کا کہ اگر ہم زبان سے اپنے گناہ بیان نہیں نہ کریں گے، لکھے نہیں جائیں گے، اللہ کو پتا بھی نہیں چلے گا، اللہ کو بس وہی پتا چلے گا جو فرشتوں نے لکھ دیا۔ تو گناہ کرو اور گناہ کو چھپا لو۔ لہٰذا یہ مانتے تھے کہ اگر تم زنا کرو کور کر کے اپنے آپ کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ واقعی مانتے تھے یہ بات۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ کو کتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے۔ اللہ حق فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اور اللہ کا مقام کیا ہے؟
इन अल्लाह अलीम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अल्लाह इंसान के दिल और इरादे के दरमियान हाइल है। इरादा दिल में बाद में आता है और अल्लाह के इल्म में पहले होता है। वो जानता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ, वो जानता है आप यहाँ क्यों आए, वो हमारे दिलों पर निगरान। वो जो फरिश्ते रिपोर्ट तैयार करते हैं वो अल्लाह के लिए नहीं है, वो तो कयामत में हमारे मुंह पे मारने के लिए, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो कयामत के दिन भी झूठ बोलेगा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर दिया जाएगा ये पढ़ो अपना नाम है। अल्लाह तो सब जानते हैं। तो इतना इनका अल्लाह के बारे में गलत अकीदा था। आफला ताकिलून, कहते क्या तुम्हें अकल नहीं है, तुम अपने खिलाफ सबूत फराहम कर रहे हो मुसलमानों को। अवला, क्या नहीं, यालमूना, वो जानते, अन्नल्लाह यालमू, अल्लाह जानता है, मा युसिरुना व मा युलिनून, जो वो छुपाते और जो वो जाहिर करते हैं। अल्लाह कहती है क्या इन्हें इतना भी नहीं पता कि अल्लाह वो सब जानता है, जो ये दिखाते हैं, जो ये छुपाते हैं। यानी कि मुझे पहले ही पता है इनकी करतूतों, कोई केस करे ना करे, मेरी किताब की जो बेहुरमती हुई उसका बदला मैं खुद लूंगा। वमिनहुम उम्मीयूना, अच्छा ये तो उलमा का हाल है। अब जो इनके अवाम है उम्मीयून, अनपढ़, असल में प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रॉब्लम वही है जो हिंदुओं का है। हिब्रू, इब्रानी, वो जुबान है जो दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती, तब भी नहीं बोली जाती थी, तो इनके उलमा खसूसियत से सीखते, अवाम नहीं सीख सकते। हिंदुओं का भी यही प्रॉब्लम है, संस्कृत खत्म हो गई, संस्कृत सीखने सिर्फ पंडित, ताकि वो अपनी मजहबी किताबें पढ़ सके, दुनिया में पढ़ी नहीं जाती, वो बोली नहीं जाती। ठीक है, हमारा मामला बिल्कुल अलग है। अरबी एक जिंदा जुबान है, लाखों करोड़ों लोग दुनिया में बोलते हैं और प्रिवेल करती है दुनिया के बहुत बड़े खित्ते में। आप सीखना चाहें, आप 3-4 महीने में अरबी इतनी सीख लेंगे कि आप कुरान को समझ सकें। ठीक है, तो अल्लाह फरमाते हैं वो जो अनपढ़ है, यानी अनपढ़ से मुराद यहूदियों की अक्सरियत पढ़ी हुई थी, अनपढ़ से मुराद जिन्हें संस्कृत इब्रानी नहीं आती। ला यालमूनल किताबा, वो किताब के बारे में नहीं जानते, इल्ला अमानिया, सिवाय इसके कि चंद आरज़ूएं हैं, यानी वो किताब के बारे में नहीं जानते, अपनी ख्वाहिशात पर चलते हैं। व इनहुम इल्ला युज़ुन्नून, और वो सिर्फ गुमानों पर है, यानी वो गुमान की पैरवी कर रहे हैं जैसे हमारे अवाम करते। हमारी अवाम की अक्सरियत, जैसे अभी बहन ने कहा देहात के लोग बड़ा गोश्त नहीं खाते, वाकई नहीं खाते, और कितनी दफा हम परस्ती तावीज़ पहने हुए, ये किया हुआ, वो किया हुआ, मन्नतों के लिए दरबारों पे जाना, पीरों के पास जाना, सब कुछ करते हैं, आपको पता ही है। तो ये सब कुछ क्या है, ख्वाहिशात, जो दिल चाहता है वो करते हैं। दीन का क्या इल्म है, कुछ इल्म नहीं। फवैलुन, हलाकत है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यक्तुबूना, जो लिखते हैं, किताब बिअयदीहिम, किताब अपने हाथ से, सुम्मा यक़ूलूना, फिर कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। ये है जी खास वो करो, खास करो गुलाम अहमद कादियानी का, इस्माइली फिरके का, और जनाब इस तरह के जितने भी गोहर शाही वगैरह, ये सारे फिरके। बाकी जो कुरान में कमी पेशी करते हैं वो तलबीस का मामला है, यानी कि जो अल्लाह ने कहा वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, वो मामला है, हक और बातिल को मिक्स कर देते हैं। यानी उन्होंने कुरान में अपनी तरफ से चीजें बराह रास्त ऐड नहीं की, बल्कि उन्होंने हक और बातिल को मिक्सचर बनाकर पेश कर दिया। गुनाह एक ही है, अल्लाह की वही को बदलना, उसकी शक्लें मुख्तलिफ। किसी ने हक बातिल को मिला जुला कर मलगूबा बना दिया, समझ नहीं आता हक क्या है बातिल क्या है, और कुछ ने क्या किया कि अपनी तरफ से एडिशंस कर दी, ये उनका जिक्र। सुम्मा यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, यश्तरू बिही, ताकि वो हासिल करे इसके बदले में समनन कलीला, थोड़ी कीमत। हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से वही में ये बात आई है, ताकि दुनिया की थोड़ी कीमत पा सके। थोड़ी से मुराद ये नहीं कि थोड़ी, बड़ी कीमतें मिलती है, बड़ी कीमतें मिलती है, लेकिन दुनिया का कुछ भी हो जाए, माल समनन कलील है। फिर वही मिसाल दूंगी जो मैं अक्सर देती हूँ, बेनजीर साहिबा कितनी अमीर थी, कितना माल इस्तेमाल कर दिया भाई अपना, सारे सिर्रे महल यहीं धरे रह गए। दुनिया में आप कितना इस्तेमाल कर सकते, टाइम ही नहीं है। आप गर्मियों के कपड़े बनाते हैं ना, आप वो पूरे नहीं पहन सकते, तो अगली गर्मी आ जाती है, होता है ना ऐसा, कई जोड़ों पे हसरत रह जाती है, क्यों मैंने बड़ा पसंद इसी में पूरा नहीं पा सकती। आप कोई खाना बनाते पेट भर के, आपकी ख्वाहिश पूरी होती, खाना खत्म हो जाता। ये तो जन्नत में पूरी होंगी ख्वाहिशात, ख्वाहिशात को जन्नत के लिए रखें, दुनिया को जरूरियात तक नहीं करें, इंशाअल्लाह अल्लाह फजल करेगा और अपनी तकदीर पर राजी हो जाए। जो आपके नसीब में है मिलकर रहेगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल बड़ा महबूब है मुझे, वो कहते हैं मा नुसीबुक युसीबुक
वलौ तहतल जबलैन ला नसीबु ला युसीबु वलौ बैनल यदैन। जो तेरे नसीब में है तुझे पहुंचता रहेगा, अगर चाहे दो पहाड़ों के नीचे हो, जो तेरे नसीब में नहीं है तुझे नहीं मिलेगा, अगर चाहे तेरे दो हाथों में। कभी नहीं हुआ आप चाय का कप बनाकर पीने लगते हैं तो ऊपर से मियाँ आ गए या भाई आ गए या बेटा अम्मी मुझे दे दो, अच्छा तू पी ले, नहीं पीते, होता है ना ऐसा, गिर जाती है। मैंने केला छीला, मुझे बहुत याद आई ये बात, कुछ ही दिन पहले मैंने केला छीला और छिलका मेरे हाथ में रह गया और केला डस्टबिन में चला गया, नहीं था नसीब में, गया। जो नसीब में नहीं आप नहीं खा सकते। आप कई मौतें होती हैं, आप कहते हैं जी नवाला मुंह में डालने लगे और मर गए, नहीं था नसीब। तो फिक्र मत किया करे, गम मत किया करे, दिल को अपने हुज़्न से आजाद कर ले। अल्लाह फजल फरमाएगा, जो होना है वो होकर रहना है। आपकी तकदीर लिखी जा चुकी है। कब? आदम का बुत तैयार होने से भी पहले। तो फिर टेंशन किस बात की है? रिलैक्स करें। लिखने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आप अपने बच्चे के लिए लिखने बैठे तो बुरा लिखेंगे? वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है तो कैसे बुरा लिखेंगे? कुछ बुरा नहीं है, इम्तिहान के फेज है, मगर इम्तिहान इसलिए आता है कि और तरक्की दी जाए। तो इन्नमल उसरी युसरा, बस परेशान ना हुआ करें। फवैलुन, तबाही है, लहुम उनके लिए, मिम्मा उसकी वजह से जो कतबत लिखा ऐदीहुम उनके हाथों ने, हलाकत है इन लोगों के लिए इनके हाथों की तहरीरों की वजह से। ववैलुन लहुम मिम्मा यक्सिबून, हलाकत है उनके लिए उन कमाइयों की वजह से जो उन्होंने कमाया। जैसे सूरह दुहा पढ़ी गई, एक जगह हम गए हुए थे और वहां 70 तरह के उन्होंने तर्जुमे कर दिए। आयत जो आई वो वजदका दुआल्लन फहदा, ऐ नबी हमने तुझे गुमराह पाया, हमने हिदायत दी, सादा तर्जुमा। 70 तरह के तर्जुमे कर छोड़े, बड़ी गरां गुजरती है दिलों पर। अब रब अपने बंदे से कह रहा है तुम भी इसी में मामे लगती हो। रब अपने बंदे से कह रहा है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने से पहले जानते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत कैसे होनी है, आखिरत क्या? कुछ नहीं जानते थे ना। ये समझ गए थे कि ये वो खुदा नहीं है, मगर उससे आगे क्या वो तो नहीं जानते थे। तो गुमकर्दा राह कौन होता है? जिसको समझ नहीं आ रही होती कि सही रास्ता कौन सा है। तो आप भी तो इसी कैफियत में थे, सही रास्ता कौन सा है यही तो सोचते रहते थे। अल्लाह ने वही उतार के बता दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा नहीं मानते, वो रब का बराबर ही मानते। एक बार किसी ने मुझे कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका छोटा सा बच्चा था 3-1 साल का, 4 साल का बोलता था, 4 साढ़े 4 साल का होगा। तो उसको कहने लगी, ये मैं उनके घर कुरान की क्लास की दावत देने के लिए गई, तो कहने लगी कि हम तो बड़े दीनदार हैं, हम तो बहुत ये करते, हम तो वो करते, हम तो फुला, हम तो टमका, बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में कहा। और फिर कहने लगी देखिए मैंने अपने बच्चे को दीन पे तरबियत दी है, बेटे बताओ अल्लाह कितने हैं? वो कहने लगा 2, एक अल्लाह एक मोहम्मद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उस पर उनका जोम देखने लायक था कि उनका तो ऐसे था कि बस उनका घर तो हरम ही है। ये तो सोच है, इसी सोच की वजह से ये आयत मुश्किल लगती है मानने। तो ये इस तरह जो तर्जुमों में फिर कमियां बेशियां करते हैं, बातें आगे पीछे करते हैं, सच नहीं बोलते, ये है जी किताब अपने हाथ से लिखना करना अल्लाह की तरफ से। वकालू, उन्होंने कहा लन तमस्सना अन्नारु, हमें जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, इल्ला अय्यामम मादूदा, चंद गिनती के दिनों के सिवा। किन्होंने कहा जी? यहूद ने। वो कहने लगे हम कलमा पढ़े हुए हैं, जो हम कहते हैं हम कलमा पढ़े हुए हैं, हमें जहन्नुम की सजा नहीं होगी, अगर जहन्नुम में गए चंद दिनों बाद निकाल लिए जाएंगे। अल्लाह का जवाब सुन लीजिए, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्यों पूछिए क्या तुमने अल्लाह से वादा लिया है? फला युखलिफुल्लाहु अहदहु, अगर वादा लिया है अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, या कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहते हो जिनका तुम्हें पता ही नहीं है। हम भी तो यही कहते हैं ना, हमने कलमा पढ़ लिया हम जन्नत में नहीं जाएंगे, और अगर गए भी तो निकाल लिए जाएंगे। अल्लाह कहते हैं सबूत लेकर आओ। देखिए जी ये बात उनके लिए है जिनसे कोई गुनाह कबीरा हो गया। गुनाह कबीरा और कुफर में फर्क होता है। किताब को इरादतन बदल देना कुफर है, शिर्क है। गुनाह कबीरा तो ये है माँ बाप की नाफरमानी होगी। अल्लाह माफ करे कोई शराबी मर गया,
कोई जिनाकार मर गया, लेकिन उसने तौहीद और रिसालत को नहीं छेड़ा, उसने कुफ्र और शिर्क के इक़दामात नहीं किए, तो उसके लिए ये रियायत है कि फाइनली निकाल लिया जाए। लेकिन जिन्होंने अल्लाह के दीन को मजाक बना दिया उनके लिए नहीं। शिर्क ही माफ करना हो तो फिर अबू जहल क्या बुरा है माफ करने के लिए, बल्कि उसको भी छोड़े, अबू तालिब भी माफ हो जाए, शिर्क भी माफ होने लगा। आप कहेंगे यहाँ शिर्क कहाँ है? पैसे को खुदा नहीं बनाया, पैसे को पूजा, ये है शिर्क। अल्लाह कहते हैं बला क्यों नहीं जहन्नम में जाओगे, मांग का सबब सय्यातन, जो बुराई कमाएगा, व आहत बिही खतियातुहु, और उसकी बुराई उसे घेर लेगी, फउलाइका अस्हाबुन नार, तो जहन्नमी है। बुराई कैसे घेर लेती है? तौबा नहीं की जिंदगी में, शराबी थे शराबी मर गए, जानी थे जानी मर गए, दीन को बदला ऐसे ही मर गए, तो अल्लाह कहते हैं वो जहन्नमी है, हुम फीहा खालिदून, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं निकाल दूंगा जहन्नम से, ये हमने खुद सोचा हो। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस स्वालिहाती, नेक काम किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नती, वो जन्नती हैं, हुम फीहा खालिदून, वो जन्नत में रहेंगे हमेशा। तो ईमान के साथ अमले स्वाले शर्त है, अगर अमले स्वाले नहीं है तो फिर माफी नहीं है। वइज़ अखज़ना, जब हमने लिया, मीसाक़ बनी इसराईला, बनी इसराइल से पुख्ता वादा, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। यानी अल्लाह अब एक खास कोड ऑफ एक्शंस बता रहे हैं कि जो हर उम्मत पे रहे हैं, बनी इसराइल पे भी रहे। अल्लाह कहते हैं हमने बनी इसराइल को भी कहा था शिर्क मत कर, उन्होंने भी किया, तो हम भी कौन से बाज आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वबिल वालिदैनी ihसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना, उर्दू वाला एहसान नहीं, वो तो सारी औलादें करती है, स्कूल जाकर भी हम पर एहसान करते हैं। एहसान अरबी वाला, नेकी का वो पैमाना जो सबसे आला, वो एहसान। और इस गए गुजरे दौर में माँ बाप का फरमा बरदार को यक्का दुक्का बच्चा ही निकलेगा, क्योंकि हम उस फितने के दौर में बैठे हैं जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और मैंने पहले दिन आपको यह हदीस सुनाई थी कि आप फितनों के दौर में बैठे हैं। उसकी अलामत यह है कि माँ अपनी मालिका को जन्म देगी। तो इसमें दो बातें हैं बड़ी अहम, पॉइंट हैं, इशारे हैं। पहला लतीफ इशारा क्या है? बेटे सरकश हो जाते हैं, बेटियां फरमा बरदार होती है, 99 टाइम्स, है ना। लेकिन इतना शाल बढ़ जाएगा कि बेटियां सरकश हो जाएगी, माएं बेटियों से डरेंगी, और ये वही जमाना है। हम देखते हैं माओं की जरूरत की बेटियों को कुछ कह ले। दूसरी बात यह है कि बच्चे बाप के साथ सरकश हो जाते हैं लेकिन माओं की सुन लेते, होता है ना। लेकिन इतनी बदलिहाजी हो जाएगी औलादों में कि माँ को भी जूते की नोक पे रखेंगे माजल, और आज हम वो भी देख रहे हैं। तो इस गए गुजरे दौर में बहुत कम वालिदैन हैं जिनको बच्चों की इताअत नसीब होगी, और बड़े कम खुश नसीब औलादें हैं जो वालिदैन की फरमा बरदारी करेंगे। वजह पता है क्या है? खुश नसीबी औलादों की है। वालिदैन के लिए तो जो लिखा है वो तो पूरा होकर रहना है, खुश नसीबी औलादों की है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने वालिदैन को, दोनों को या एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, उस पर लानत। पैगाम भेजा अल्लाह ने, कहा जिब्राइल ने और आमीन पढ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आगे कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह, वालिदैन के नाफरमान की दुआ तो लैलतुल कद्र में कबूल होती है। वज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ भी क्या करना है? एहसान अरबी वाला। तो अब तो रिश्ते निभाना भी खत्म हो गया ना, अब तो जरा सा कोई ऊंच नीच हो जाए छोड़ देते। बड़ा खूबसूरत शेर है, जरा सी लफ्जिश पे छोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, स्वैसों वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये। जरा कोई रिश्तेदार सब तंज करने वाला है, बेवकूफ है, लोग दामन छुड़ा लेते हैं, बुलाना छोड़ देते है ना। और गुर्बत तो एक सबब है ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बदतरीन महफिल वो है जहां अमीर रिश्तेदारों को बुलाया जाए, गरीबों को छोड़ दिया। वल यतामा, और यतीमों को। और क्या कहना जी, दीनी मजलिसों में पता क्या होता है, जिस पर पिछली बार सालाना उस पर मैं नाराज भी हुई थी, सिर्फ आपके यहाँ नहीं हर जगह होता है। जो क्राउड आया होता है ना, उसके लिए चने वाले चावल पका लिए जाते हैं, जो नाम में हाथ आलम आए होते हैं, पता नहीं आलम हो के जालम हो, तो अल्लाह को पता है दिलों का हाल, उनके लिए गोश्त पका लिया जाए। सबके लिए एक चीज पकाओ, नहीं अफोर्ड कर सकते सबको चने वाले चावल खिलाओ, कम से कम अल्लाह के हुजूर तो एक हो जाओ ना। वो इकबाल कहते हैं ना,
बंदा और साहिब और मोहताज और गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, कम से कम इतने तो हो जाओ, अल्लाह के घर में तो बराबरी पैदा कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन की गलती कम है, उलमा की ज्यादा, जो रोकते नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका एहतराम करना चाहती ना, उलमा का फर्ज है मना करे। बातें करने जो जाती है एक शोहर अपनी बीवी से कहता है तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो, कहते जी बहुत करती हूँ। वो कहते हैं अगर मैं चारपाई पे बैठूं, कहते मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगी, कहते मैं कुर्सी पे बैठूं, कहते मैं पीढ़ी पे बैठ जाऊंगी, वो कहते मैं पीढ़ी पे बैठूं, कहते मैं चौकी पे बैठ जाऊंगी, वो कहते मैं चौकी पे बैठ जाऊं, वो कहते मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी, कहते मैं जमीन पे बैठ जाऊं, कहते मैं खड्डा खोद दूंगी, वो कहता है अगर मैं खड्डे में बैठ जाऊं, कहती मैं मिट्टी डाल दूंगी। तो ऐसे पर मिट्टी डाल दे, फिर ऐसे पे मिट्टी डाल दे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कहे मैं आलिम हूँ वो जाहिल है, जो कहे मैं नेक हूँ वो मुनाफिक है, जो कहे मैं सखी हूँ वो रियाकार है, और तुम में से बदतरीन लोग वो हैं जो चाहते हैं कि मैं इज्जत दी जाए। इज्जत खानों में, इज्जत तो दिलों में मोहब्बत होती है, ठीक है। इंतजामी अमल की बात अलग है, कभी पढ़ाना है, सब लोग नजर आए, चलो चेयर रख ली, वो और मामला है, लेकिन बाकी सब बराबर, सब बराबर, सबके दरमियान एक खाना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एक जैसा माहौल होना चाहिए, है ना। कम से कम अल्लाह के हाथों करे ना, गुरबा को इज्जत दे, मसाकीन को इज्जत